کے شہر چھانگا مانگا اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے شہر خانے وال کی ٹیمیں موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں کیسی تیاری کر کے آئی ہیں اور آج مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا. تشریف لائیے, ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیے. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں. کل کا مقابلہ ایک بار پھر ویری کلوز رزلٹ. دو ٹیمیں تھیں, ایک ٹیم آگے بڑھ گئی, ایک ٹیم پیچھے رہی. کون سی ٹیم آگے گئی, کون سی پیچھے, آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. کتنے فرشتے انسان کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں؟ انسان کی حفاظت کرنے پر 60 فرشتے مأمور ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. 47 لالا موسیٰ, 50 ملتان. آخری شعر ہے اے لمبے لمبے, جی جناب بیل بجائی ہے لالا موسیٰ والوں نے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے, مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو دو آم تیرا. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو دو آم تیرا. جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے سوال پورے ہو گئے. 1 نمبر کے فرق سے آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. لالا موسیٰ والوں نے بڑی کوشش کی. علم کی تو نور ہے, ہاں بالیقین نور ہے, جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. جناب کل ہمارے اسٹوڈیو میں ایک عجب رونق تھی. الحمدللہ 32 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائی موجود تھے اور آج بھی عالمی مدنی مرکز میں 70 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائی موجود ہیں, مگر ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں کیونکہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ نیچے عالمی مدنی مرکز میں جاری ہیں. انشاءاللہ مجھے بھی جوائن ہونا ہے, مگر آج میں آپ کو ایک اور, میں نے کہا تھا کہ ایک سرپرائز ہے. آج ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جس کے لیے آپ کالز بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری مدنی چینل کی رونق ہے, اللہ ان کی عزت میں اور برکت دے. اور ہماری گزارش پر تشریف لائے ہیں اشفاق مدنی بھائی, آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ انشاءاللہ ان سے اشعار بھی سنیں گے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے. وقت ہوا ہے ناظرین دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. چھانگا مانگا اور ماشاءاللہ خانے وال کے اسلامی بھائی باری باری نام بھی بتائیں گے, کام بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر اور والد محترم کا نام فقیر حسین ہے. میں صوبہ پنجاب کے شہر پھول نگر کے جامعۃ المدینہ ابر رحمت میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق دینا ناتھ گاؤں سے ہے. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسین اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالستار ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری رہائش چھانگا مانگا کی. ماشاءاللہ. تینوں اسلامی بھائیوں نے اپنا نام بھی بتایا, اپنے شعبے بھی بتائے. اب باری خانے وال والوں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب اتاری, والد محترم کا نام مرید حسین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانے وال میں 3rd ایئر یعنی ثالثہ کا طالب علم ہوں اور میری رہائش بھی خانے وال نصف فیضان مدینہ ہے. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے. میرا تعلق بیسیکلی دنیا پور سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اور والد صاحب کا نام عبدالجبار ہے. بیسیکلی میرا تعلق ڈھنور شہر ضلع لودھرا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دنیا پور میں درجہ 5th ایئر کا طالب علم ہوں. پہلے جناب خانے وال اور چھانگا مانگا والوں کا تعارف ہو گیا ہے. اب وقت ہوا ہے ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا, اس کا جواب اور اس کی قرآن داز.
جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی کنیت کیا ہے؟ تو جواب ہے ابو قحافہ۔ یہ جواب فیضان صدیق کے اکبر کتاب میں موجود تھا۔ ہمارے پاس جو نام ہے ان میں بنت محمد جمیل اتاریہ سندھ، محمد طاہر دنیا پور، بنت ایاز اتاریہ، بنت جاوید اتاریہ، غلام یاسین چشتی بورے والا، بنت شاکر اتاریہ تربیلا غازی، محمد نعیم رضا کراچی، بنت لیاقت اتاریہ مصطفیٰ آباد رائے ونڈ، بنت علی گوہر اتاریہ دادو سندھ، ام حسنین فیصل آباد، ارسلان لودھرا اور بنت لیاقت شمالی سرگودا۔ انشاءاللہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی۔ اور جو نام نکلا ہے بنت شاکر اتاریہ، بنت شاکر اتاریہ تربیلا غازی، آپ محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، دعوت اسلامی کہاں نہیں، مکمل کیجئے صحابہ ہمارے بڑی شان والے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تھوڑے سیگمنٹ آگے پیچھے کیے ہیں، سیگمنٹ وہی ہے مگر کسی وجہ سے اس کو آگے پیچھے کیا ہے۔ آج وقت ہوا ہے پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے یہاں ٹیموں سے سوال شروع کریں، ناظرین آپ سے سوال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میسج کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا جان کا نام آپ بتائیں گے۔ اسی طرح جو کوئز اپلیکیشن کے ناظرین ہیں وہ جلدی جلدی جواب دیں گے۔ 4 آپشنز ہوں گے اور اس میں سے ایک آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سارہ، بی بی زینب یا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک نام درست ہے، صحیح جواب دیجئے۔ میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے کیونکہ اس کے صحیح جواب میں سے کچھ نصیبوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے، سوال کرنا ہے چھانگا مانگا کے اسلامی بھائیوں سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس چیز سے بنے ہوئے کنگن پہنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے کنگن پہنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو ہاتھی کے دانت کے کنگن پہنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس کے آس پاس خندق کھودی گئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب میں چونکہ تمام کفار مکہ کے لشکر شامل تھے، ان سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے کافروں کا حملہ، اس وجہ سے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کی حقیقی بہن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے عالم کی کیا تعریف بیان فرمائی؟
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आलिम वो है जो अपने अकायद से पूरे तौर पर वाकिफ़ हो और मुस्तकिल हो और अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से मालूम कर सके बगैर किसी की मदद के। आलिम की तारीफ यह है कि अकायद से पूरे तौर पर आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी जरूरियात को किताब से निकाल सके बगैर किसी की मदद के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सबसे बेहतरीन और सबसे बुरा कौन है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़मीं आज़माइश आ गया, बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार। इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। बेकरार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम, कौन सा शख्स सबसे अच्छा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। फिर उस शख्स ने दोबारा अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि कौन सा शख्स ज़्यादा बुरा है? तो हुजूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। जनाब, लोग ये तो बड़ी तमन्ना करते हैं कि उम्र लंबी हो जाए, मगर अच्छी बात यह है कि उम्र लंबी भी हो और अमल भी नेक हो। पता चला उम्र भी लंबी है और गुनाहों की आदत है तो और मारा जाएगा। क्या खूबसूरत बात फरमाई। बेहतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें नेकियों वाली, आफियत वाली, खैर वाली, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। चले जनाब, ये सवाल हो गए हैं। दोनों टीमों से 3-3 सवाल हो गए हैं और अब बारी है टॉपिक के जरिए सवाल करने की। टॉपिक रोटेट करेंगे, आप बेल बजाएंगे तो टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, फिर आपसे सवाल। ठीक, जनरल नॉलेज जनाब, छांगा मांगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल तो इनके पास है, लेकिन सवाल ये नहीं है पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी? सब्जी खाने वाले तो हैं मगर कौमी सब्जी भी कोई है जनाब? मदद लेंगे, ऑप्शन लेंगे। मदद लेंगे। मदद लेंगे। कौन है भाई सब्जी वाला? मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई, या सहरा थर वाले हैं, इनको शायद पता होगा। दे भाई मुश्ताक भाई के पास माइक लेके जाएं कि कौमी सब्जी कौन सी है। शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को आज पहली बार पता चलेगा कि हमारी कोई कौमी सब्जी भी है। सब्जी सब्जी होती है? नहीं जनाब, कौमी सब्जी होती है, कौमी फल होता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है। भिंडी है, हाँ जनाब, क्या फरमाते हैं? जी दुरुस्त है। भिंडी पसंद है आपको? खाते हैं भिंडी? हाँ माशाल्लाह। अच्छा, चलें भाई, दिखाएं ऑप्शन दिखाएं। हाँ, कौन कौन सी सब्जी का ऑप्शन था? टमाटर, भिंडी, आलू। भिंडी पे ही जाना पड़ेगा जनाब। जवाब मेरे हिसाब से भी दुरुस्त ही है, मगर मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। खाने वालों की बारी है। अच्छा, तोहफा भिंडी तो नहीं दे रहे ना? नहीं नहीं, भिंडी नहीं है हमारे पास। इनको तस्बीह मदीना तोहफे में देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, खाने वालों की बारी। औलियाए किराम जनाब, मुस्तफा रजा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला का तखल्लुस क्या है? क्या बात है, नात पढ़ने वालों को तो आसान हो गया। जी, मदद लेंगे। मदद लेंगे। मदद लेंगे जनाब। इससे मदद लेंगे। हसन भाई। हसन भाई से मदद लेंगे भाई। चले भाई, बताइए मुस्तफा रजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नूरी जी, जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उनका तखल्लुस नूरी है। और मैं चाहूंगा, अशफाक भाई आज मौजूद हैं, वैसे तो बहुत सारे कलाम अच्छे पढ़ते हैं, मगर एक कलाम तो ये बहुत ही आउट क्लास पढ़ते हैं, उसी का मक्ता सुना दें कि रियाजत के यही दिन है। इसके दो मक्ते हैं। हाँ माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे हैं। आप दोनों सुनाइए। फकत निस्बत का जैसा
हकीकी नूरी हो जाऊं, फकत निस्बत का जैसा हूँ, हकीकी नूरी हो जाऊं, मुझे जो देखे कह उठे मियां नूरी मियां तुम हो। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। क्या खूबसूरत मैसेज दिया है। रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो नौजवान हैं, जिनके हाथ पैर सलामत हैं, जिनके पास सेहत है, अभी कर ले, फिर बुढ़ापे में तो हिम्मत नहीं बचती। जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम। जी, इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की ज़ेली हल्के के 12 दीनी कामों की अहमियत, उसकी फ़ज़ाइल और तरीक़ेकार पर मुश्तमिल अहम और मुफीद तहरीर 12 दीनी काम, जिसमें रोज़ाना के 4 दीनी काम है, हफ्तावार 5 दीनी काम है और माहाना 3 मदनी काम है। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको तोहफ़े में दी जा रही है। आप चाहें तो इसको मकतबतुल मदीना से 350 रुपये हदिये पर तलब कर सकते हैं। जनाब अब चलते हैं नादरीन, एक और सवाल होगा टॉपिक से रिलेटेड। छांगा मांगा वालों की बारी है। औलिया इकराम, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन दे दें। 10 साल, 40 साल या 32 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मेरे गौस पाक तो इतने बरस इशा के वुजू से फजर अदा फरमाए और कादरी कहलाने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। सोचे वो लोग जो नमाजें कज़ा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। औलिया इकराम से मोहब्बत है फिर उनके नक्शे कदम को भी फॉलो करें ना। जनाब खानेवाल वालों की बारी है। जनरल नॉलेज, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किस मुल्क में कायम की गई? जनाब खानेवाल वाले जवाब देंगे, मदद लेंगे? ऑप्शन नहीं जनाब, ऑप्शन लेंगे। बताइए, हांगकांग, स्पेन या इटली? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किस मुल्क में कायम की गई? आसान सवाल नहीं है। जल्दी करें। स्पेन। आपने कहा स्पेन, आपसे गलती हो गई है। इटली में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई। जनाब यहाँ सारे सवाल पूरे हो गए। अब हाजरीन की बारी है, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, तोहफा लीजिए। जी, अभी 12 दीनी कामों की किताब हमने तोहफे में दी, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेते हैं। ये दावत इस्लामी के कोई भी 5 शोबाजात के नाम बताइए जिनमें लफ्ज़ मदीना आता हो। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तारी गुलशन मेमार से हाजिर हुआ हूँ। दावत इस्लामी के 5 शोबाजात जिनमें मदीना का लफ्ज़ आता है, जामियातुल मदीना, मदरसातुल मदीना, अल मदीनातुल इल्मिया और शोबा खुद्दामुल मसाजिद नहीं शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, ये हो गया। अच्छा, 5वां
दारुल मदीना। दारुल मदीना, माशाल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाबा से बुलंद क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब्दुल हबीब भाई एक बहुत प्यारी किताब है अस्माउल हुस्ना के फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात, हिकायात और आतो वज़ाइफ भी है। अल्लाह पाक के प्यारे 99 नाम, जिसमें माँ फ़ज़ाइल और बरक़ात भी हैं। ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। बहुत प्यारी किताब है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल अब्दुल हबीब भाई आप करें। शोभा जात में अर्ज कर रहा था खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, उसमें भी मदीना लफ्ज आता है क्योंकि हमारा वो शोबे का नाम अब मजीद एक्सटेंड हुआ है और अल मदीनतुल इल्मिया का इस्लामिक रिसर्च सेंटर बन गया है। सवाल कीजिए, आप ही कीजिए। अच्छा जी, अच्छा, कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ सुनाइए। माशाअल्लाह। पीछे इस्लामी भाई मौजूद है, वो भी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं कब्रिस्तान की दुआ। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाया। माशाअल्लाह, साउथ अफ्रीका से आए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। चलें, आदि तो आपने सही सुना दी है। ये दुआ ही इतनी प्यारी है नाज़रीन, यकीन करें अगर इस दुआ का मकसद समझ जाए ना, क्या हदीस पाक से ये दुआ हमें मिली है, जिंदगी गुजारने का सलीका इसमें मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। फिर आगे फरमाया व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, तुम पहले चले गए, हम पीछे आने वाले हैं। काश ये कब्रिस्तान जाकर याद आ जाए कि बारी आने वाली है, हम सब ने जाना है। अल्लाह करे कि बस ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली मौत नसीब हो। जी, इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सीरतुल अंबिया इंग्लिश ट्रांसलेशन में लाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। चलें, माशाअल्लाह। एक और बात इस दुआ से सीखने को मिलती है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर के जरिए तमाम कब्र वालों को या कहकर पुकारना, ये हदीस पाक से साबित है। तो कब्रिस्तान में तो गुनाहगार भी होते हैं, नेक भी होते हैं, तो जब हर मुसलमान की कब्र पर जाकर, कब्रिस्तान जाकर या अहलल कुबूर कह सकते हैं। बाज़ औक़ात तो कब्रें भी अंदर अंदर होती हैं, मीलों दूर लंबा लंबा कब्रिस्तान होता है, तो अगर फिर कोई या गौसे आजम कहता है, या रसूल अल्लाह कहता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जनाब ये भी बात इससे सीखने को मिली। आइए नाज़रीन, आप चलते हैं, एक कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ से। भाई बहुत अच्छे तरीके से जारी सारी है अब्दुल हबीब भाई। कल भी बहुत रौनक थी इस ज़हनियत प्रोग्राम में, लेकिन आज तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम में इशफाक अतारी मदे अल्लाह ताला क़यामत मरहबा अहलन व सहलन। इशफाक भाई, हम आपको दिल की अता गहराइयों से इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इशफाक भाई के आने से आप खुश हुए, हमें भी खुशी हुई माशाल्लाह। चले जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर है छांगा मांगा, 8 नंबर है खानेवाल। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। माशाल्लाह, ज़हनी आजमाइश की टीम छांगा मांगा से सवाल होगा। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने, गुल बुने रहमत की डाली है। सात सेकंड रह गए हैं। तेरा कद्दे मुबारक गुल बुने रहमत की डाली है। वक्त आपका खत्म हो गया है। इसे बोकर तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। कज़ा हक है मगर उस शौक का अल्लाह वाली है। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। जो उनकी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली, यानी मरना तो है मगर एक शौक बड़ा प्यारा है कि अगर सरकार के नाम पर जान कुर्बान होना तो वो जान भी अल्लाह वाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। जो उनकी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है।
हजूर तैयबा से भी कोई काम बरकर है कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सहाबे सुखन से नाम मैं के नम से भी कम। तेरी साहब सुखन से न मैं के नम से भी कम, बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल। हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत हैं। क्या खूबसूरत तरतीब बांधी है। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रजी, रसूलो नबी। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रजी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीओ अली, सना की जुबां तुम्हारे लिए। क्या बात है। अतीको वसी, गनीओ अली, सना की ज़बां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया। कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रजी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीओ अली, सना की ज़बां तुम्हारे लिए। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से। सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से, ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से, सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से, ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना, ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। दिल अपना चमक उठे ईमान की तलअत से। दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से, कर आंखें भी नूरानी ए जलवाए जाना। कर आंखें भी नूरानी है जलवाए जाना ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपना चमक उठे ईमान की तलअत से, दिल अपना चमक उठे ईमान की तलअत से, कर आँख भी नूरानी, कर आँखें भी नूरानी, ऐ जलवाए जाना ना। सुभान अल्लाह। अब बारी है दोनों टीमों से एक तर्ज पूछनी है। अच्छा आई साहब, ये दोनों शेर गलत पड़े गए। मैं अच्छा। इसकी चाहता हूँ कि दुरुस्ती हो जाए, जी जी। ताकि आपके एक बड़ा तबका देखता है। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है कि झूठे ही लाए, हीला नहीं होगा वरना वजन टूट जाएगा, कि झूठे ही लाए मकरो फराग। माशाअल्लाह। इसी तरह जो दूसरा पढ़ा गया इसी कलाम का, उसमें भी बलीग बहरे बलागत नहीं है, बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले, बलीग लेके चले, बलीग आगे इजाफत, बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। बलीग के बारे में कहा जा रहा है। जी जी। अच्छा बोलने वाले भी यहाँ से अच्छा बोलना सीखते हैं। क्या बात है। खैरात लेके जाते हैं, तो यही तो फायदा है। ये प्रोग्राम रेफरेंस बनता है ना, इसलिए मैंने कहा कि क्या बात है, क्या गलतियां बात। नहीं होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चले जनाब,
अब बारी छांगा मांगा वालों की है, तर्ज सुनाइए। आज वो बंदा भी मौजूद है जो तर्जे बनाते हैं ना, ये इतनी मुश्किल मुश्किल बनाने वाले भाई भी इधर ही। फिर से चलाइए। फिर से चलाइए। आला हजरत हैं, हम बरेली वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। जी जनाब, आप पढ़ के सुनाएं कौन सी है? 100 साल उर्स आला हजरत है, 100 साल उर्स आला हजरत है। चले जनाब, गलती हो गई है, बारी है खानेवाल वालों की। अब दोबारा चलवा दोबारा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए हुजूर, आ गए नबी, आ गए नबी। ये अशफाक भाई, ये तो अशफाक भाई ने बहुत शानदार कलाम पढ़ा है, ये सुना दें, ये सुना भी दें। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गया नबी कहो आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, आ गए नबी कहो आखिरी नबी, आ गए नबी मेरे आखिरी नबी। अब अशफाक भाई से गुजारिश है, आप शेर पूछें, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कोई एक मिसरा पूछें और ये जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बारी है हाजरीन की। इसी तरह तर्ज इसके बाद, पहले तो असर शेर पूरा करना है। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। चले जनाब, किससे लेना? जी बताएं, शफीक भाई जाएंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने ना दिया हो अब तक जी आप खड़े। शफीक भाई ले चलो पीछे चले गए, बिजनेसमैन आए हैं, चले उनसे सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद दानियाल मुनाफ। कोशिश न करे कोई इस जख्म को पीने की, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। अब जरा गौर करे, सीने से मुराद इसका इलाज करने की। मदीने का अगर जख्म मिल गया है, दर्द मदीना मिल गया है, तो फिर इसको खत्म थोड़ी करना है, इसकी दवा नहीं लेनी है। चले जवाब दुरुस्त हो गया, तोहफा पेश करें इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन किताब इस्लाम के बुनियादी अकीदे, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, या मरहबा। अशफाक भाई, आप तर्ज, आप लाइव हमें तर्ज सुनाएंगे और ये लाइव पहचानेंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। किसी बच्चे से ले लेंगे तो जी, बच्चों वाला सवाल। अच्छा जी। सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दो दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी देर और देंगे तो पूरा ही सुना देंगे माशाल्लाह। तोहफा दे दें माशाल्लाह। इन्हें 7 सौगात मदीना के तोहफे माशाल्लाह। आइए नाजरीन की कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम खुरम शहजाद अत्तारी है, मैं कोट सुल्तान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरा अब्दुल हबीब भाई से सवाल है, वो शेर सुनाए जिसमें खाके मदीना लफ्ज है। अच्छा, खाके मदीना, खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें पहले। थोड़ा सा नंबर में फर्क आया है। अब पहले खानेवाल पीछे था, अब खानेवाल आगे है। मुकाबला इसी तरह चलता है जनाब। अब सेगमेंट है दावत इस्लामी कहाँ नहीं। बारी है
हमारे शांगा मांगा के इस्लामी भाइयों की, और इन्होंने आना है और मुल्क दुनिया के नक्शे पर तलाश करना है। मुल्क का नाम है कनाडा। तलाश कीजिए कनाडा दुनिया में कहाँ है, और जनाब इसके कैपिटल का नाम भी बताएंगे। दावत इस्लामी 150 से जायद मुल्कों में दीन मदीन की खिदमत कर रही है, और अब कनाडा की तलाश जारी है। ढूंढ लिया है जनाब, क्या बात है। वैसे ही कनाडा इतना बड़ा है कि उसको ढूंढना बड़ा आसान है। कनाडा के अंदर नाजरीन, जब मेरा जाना हुआ था तो सिर्फ कनाडा के अंदर 6 घंटे तक जहाज चलता है। यानी इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा ये मुल्क है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं तो कितनी बड़ी कंट्री है, कई टाइम जोन्स हैं। अब आइए इसके कैपिटल का नाम बताएंगे, माइक लीजिएगा। कनाडा के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत का नाम ओटावा है। जी, ओटावा कैपिटल है। अब बताता हूं मैं आपकी दावत इस्लामी कनाडा में क्या कर रही है। जामियतुल मदीना मौजूद है, 11 मदनी मराकिज। जी हाँ, कनाडा के अंदर दावत इस्लामी के 11 मदनी मराकिज हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, हजारों सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को और तरक्की अता फरमाए। खानेवाल वालों की बारी है। आइए एक और बड़ा मुल्क तलाश करके दीजिए जनाब। वो मुल्क है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की तलाश जारी है। कहाँ है अमेरिका, नहीं मिल रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी जनाब, कनाडा के पड़ोस में ही है जनाब। ये बिल्कुल ठीक है, अमेरिका भी इतना ही बड़ा मुल्क है। तशरीफ लाइए और अमेरिका का कैपिटल बताएंगे जनाब आप। जी, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। आपकी दावत इस्लामी अमेरिका में क्या कर रही है। दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना है, 26 के करीब मदरसतुल मदीना है, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दारुल मदीना मौजूद है। 14 मदनी मराकिज सिर्फ अमेरिका में दावत इस्लामी के हैं। हजारों सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं और हजारों अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी इस तरह पूरी दुनिया में काम कर रही है। हम सबकी दावत इस्लामी, अल्लाह दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। अब बारी फिर शांगा मांगा वालों की है। पहले बड़े बड़े मुल्क पूछ लिए हैं, अब ढूंढ के बताएं तो माने। अगर आपको वहां ना मिले तो ये ग्लोब में भी आप ढूंढ सकते हैं। मुल्क का नाम है ऑस्ट्रिया। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया तलाश करना है। इस नक्शे में ना मिले तो आपको ग्लोब में ढूंढने की भी इजाजत है। तकरीबन 35 सेकंड रह गए हैं। ऑस्ट्रिया चूंकि बड़ा छोटा सा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी दावत इस्लामी दीन मदीन की खिदमत कर रही है। मेरा जाना भी हुआ है। अगर ये ढूंढ रहे हैं इस इलाके में, थोड़ा सा ये बताएं। मुझे पता है यहाँ थोड़ा प्रिंट का इशू है, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको। ये तो देखिए यहाँ कहीं है। अच्छा, ये कौन सा खित्ता है ये पता है? बर्रे आजम कौन सा है ये? इसके अंदर ऑस्ट्रिया है। यहाँ ढूंढेंगे इसको। चले यहाँ ढूंढ ले, चले इसमें और वाज़ेह है ना। यहाँ आप ढूंढ रहे थे ना, यहाँ ढूंढे। ये पाकिस्तान। 50 सेकेंड्स टाइम तो पूरा हो गया आपका। आपका ऑस्ट्रिया आएगा, ये रहा पर्पल, ठीक है। अच्छा चलें, आप ढूंढ नहीं सके कोई बात नहीं, इसका कैपिटल बता दें। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है जी? कैपिटल का नाम पता है? उसके कैपिटल का नाम है वियना। गलती हो गई है। ऑस्ट्रिया में दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना हैं। दावत इस्लामी बहुत छोटा सा मुल्क है, कई कुछ घंटों में गाड़ी में मुल्क खत्म हो जाता है, मगर वहां भी दावत इस्लामी के 2 मदनी मराकिज हैं। अल्लाह दावत इस्लामी को तरक्की दे। खानेवाल के इस्लाम में तशरीफ लाएं। आपने भी बहुत मुन्ना सा मुल्क ढूंढना है। वैसे तो बहुत बड़ा है मगर नक्शे में मुन्ना है, और उसका नाम है साउथ कोरिया। अगर वहां ना मिले तो ग्लोब में भी ढूंढ सकते हैं। हमने आपको ऑप्शन वहां का भी दे दिया है। साउथ कोरिया की तलाश है। इलाका तो सही ढूंढ लिया इन्होंने, है वहीं कहीं जी, गली में।
मिल गया भाई, मिल गया। साउथ कोरिया मिल गया है, फार ईस्ट से आगे है। अच्छा, बाइक लेंगे, उसका कैपिटल बताएंगे। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। जी जनाब, सियोल है। और साउथ कोरिया में 18 दावत इस्लामी के मराकिज मौजूद हैं। क्या बात है दावत इस्लामी की, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और हजारों सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं। चले, साउथ कोरिया की बात चली है तो अगर साउथ कोरिया के इस्लामी भाई सुन रहे हैं तो उनको गुड न्यूज दे देता हूं। इंशाल्लाह इस बार 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट, नॉर्मली तो लोग गुनाहों में गुजारते हैं, आपकी दावत इस्लामी दुनिया भर में इस रात को इज्तिमात इसलिए मुनक्किद करती है कि लोगों को गुनाहों से बचाया जाए। तो इस बार 31 दिसंबर सियोल साउथ कोरिया में मेरी हाजिरी हो रही है इंशाल्लाह, और वहाँ अजीम शान हम इज्तिमा करने जा रहे हैं। कुछ दिन साउथ कोरिया में है, फिर इंशाल्लाह जापान और हांगकांग का भी जदवल है। वहाँ के इस्लामी भाई इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपने इज्तिमात में शिरकत करनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह की नेमत गए ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत गए ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह। अब वक्त हुआ है नाजरीन, एक सेगमेंट थोड़ा अर्ली हम कर रहे हैं, उसकी वजह भी बयान करता हूं। सेगमेंट का नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। और आज उस जबान में हम मदरी फूल हासिल करेंगे। वैसे जबान उर्दू बोलने वालों को भी कुछ कुछ समझ आ जाएगी, जो कह सकते हैं ना मोस्ट डिमांडेड जबान है, उसकी कॉलें आती रहती हैं, और वो जबान है रांगड़ी जबान। कराची में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और खासतौर पे मुल्तान और उसके एरिया में भी कुछ लोग रहते हैं वहां पर। यहाँ है कोई आप में से रांगड़ी है? अच्छा, एक भाई भी बैठे हैं, चलो। अच्छा, दो रांगड़ी तो हमारे रांगड़ी बोलने वाले हमारी टीमों में भी है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपा ज़हनी आजमाइश के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रांगड़ी जबान, जिसने हरियाणवी जबान भी कावा, अल्लाह पाक के नेक बंदे शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी का बारा में सुनांगे। बर्रे सगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिन नेक लोगा ना दिन रात की मेहनता सा इस्लाम का नूरानी दीवा जलाया है, उनमें सा एक सोहरवर्दी सिलसिला के बड़े बुजुर्ग कुतुबुल अक्ताब हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात भी है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमजान की 9 तारीख 649 और 1251 ने जुमा आले दिन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पाकिस्तान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दादा शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह ना आपका नाम रुकनुद्दीन रखिया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना ज़ाहिरी तालीम और तरबियत अपना वालिद शेखुल इस्लाम सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह सा और बातनी तालीम अपने दादा हजरत शाह बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से लाई। जिद आपकी उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हुई तो आपके दादा हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, और आपके वालिद शाह सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना आपसे कुरान शरीफ हिफ्ज करवाना शुरू करा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिर्फ 16 साल की उम्र में सारे इल्म पढ़ पुढ़ा कर फारिग हो लिए थे, और तफसीर और हदीस फिक्र बयान अदब आरा शेर और रियाजी और मंतिक वगैरह में कामिल हो लिए थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वालिद और दद्दा के सच्चे जानशीन थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना 52 साल तलक नेकी की दावत आम करी और अपने मुरीदा सा हक का रास्ता दिखाया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथा पा बहुत से लोगा ना बैत करी और आपकी नजर से बड़े बड़े दर्जा पा पहुंचे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफे अपने वक्त के बड़े बड़े वली बने। हजरत शाहरुख ने आलम की मुबारक जबान से निकली हुई बाता मासा कुछ बातें मां आपने सुनाऊं हूं। नंबर 1, इंसान जित तलक बुरी आदता ना कोनी छोड़े वाडा निगरा वा डंगरा की तरह होया करे है। नंबर 2, इंसान ना चाहे कि वह अपने आप पर काबू रखे कि वह गुनाह के कामा से दूर रेवा। अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरकत नसीब फरमाए। रांगड़ी जबान की नाज शरीफ भी है और बड़ी प्यारी तर्ज भी है, तो मैं चाहूंगा कि इंशाअल्लाह आप भी चाहेंगे तो मिलकर पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آجو کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اپنی خاطر جات مدینے آڑے دی، ہاں اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی، اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی، شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، ملری سے خیرات مدینے آڑے کی، ہاں ملری سے خیرات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، ہاں حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی، سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، ہاں سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی، ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی، ہاں جاؤ کر لے بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، نمبر کچھ ملیں گے کہ نہیں؟ آج تو دو میرے ممتحن تو یہیں بیٹھے ہیں جو یہاں پر رانگڑی زبان جانتے ہیں۔ اچھا جناب، جو میں نے کہا تھا ایک سرپرائز ہے، اب مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ مجھے بیرون ملک کے تربیتی اجتماع میں جانا تھا۔ پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج اور کل کا جو پروگرام ہے وہ ہم اشفاق بھائی کو ہی دے دیں اور میں وہ پروگرام اٹینڈ کر لوں، لیکن پھر مشورہ یہ ہوا کہ کچھ دیر میں بھی حاضر رہوں، تو میں بھی حاضر رہا۔ ابھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں اور اشفاق مدنی بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پیارا سلسلہ کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اگلے سیگمنٹس وہ کروائیں گے، اور انشاءاللہ آج تھوڑا سا پروگرام یوں بھی تبدیل ہے کہ آج نعت خوانی کا بریک نہیں ہوگا، وقتاً فوقتاً اشفاق بھائی تو شعر سناتے رہیں گے، کیونکہ تھوڑا سا جلدی ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہوپ فلی امید ہے کہ امیر اہل سنت بھی مدنی چینل پر براہ راست کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں گے، اور یہ مناظر بہت خوبصورت ہوں گے جب 70 ملکوں کے اسلامی بھائیوں کو آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے۔ اشفاق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے سوئچ اوور سے پہلے نیک اعمال کا جائزہ ہمارے شفیق بھائی کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اشفاق بھائی سے پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نیک اعمال کا جائزہ موبائل اپلیکیشن میں کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، رسائل کو نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ ہوگا۔ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظیر سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی،
मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया। ईशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए। फजर के लिए जगाया। दूसरों के घरों में झांकने से बचे। घर दर्ज हुआ, मस्जिद दर्ज दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक व चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों को यूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरी आवाज़, हम चलते हैं अशफाक मदनी भाई के पास। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 17 जारी और सारी है। अपनी आबो ताब के साथ माशाअल्लाह क़िबला रुकन शूरा हज़रत मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए, बड़ी कोशिशों के साथ प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और रोज़ बरोज़ इसकी जो धूम है वो मचती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज लाला मूसा और छांगा मांगा, इन दो टीमों, 2 शहरों की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। स्कोर स्क्रीन पर ले आइए। खानेवाल और छांगा मांगा, ये 2 शहरों के दरमियान मुकाबला जारी है। प्री क्वार्टर फाइनल के राउंड्स अब अपने इख्तिताम की तरफ हैं और जल्द ही अब क्वार्टर फाइनल शुरू होने वाला है। मुकाबला करीब करीब है, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब तक 3 सेगमेंट्स हो चुके और इनमें किसने कितने पॉइंट्स लिए हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इल्म नूर है में छांगा मांगा पूरे पॉइंट्स लिए, खानेवाल वालों ने 8। अगले सेगमेंट इश्क के बोल में खानेवाल वालों ने पूरे पॉइंट 10 लिए और छांगा मांगा वालों ने 6 पॉइंट लिए। दावत इस्लामी कहा नहीं, इसमें भी छांगा मांगा 4 पॉइंट लिए खानेवाल ने, और यूं खानेवाल 22 पर है, 18 पॉइंट्स पर है छांगा मांगा। 4 पॉइंट का फर्क है, लेकिन अभी 4 सेगमेंट्स भी बाकी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें कुछ मुकम्मल करना होता है, और ये ज़हनी आजमाइश का बड़ा ही प्यारा और दिलचस्प सेगमेंट है। नाज़रीन भी इसमें अपना जहन घुमाएं और यहाँ पर जो टीमें हैं वो भी आगे से आगे बढ़ते रहें। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, मुकम्मल कीजिए। दोनों टीमों से कुछ मुकम्मल करवाया जाएगा। जो यहाँ हाजरीन है ये जवाब नहीं देंगे, ना ये कुछ बोलेंगे, ना आप हिंट देंगे। प्लीज आपने खामोशी से स्क्रीन को देखना है, जब आपको मौका दिया जाए तब आप जवाब देंगे। तैयार हैं छांगा मांगा के इस्लामी भाई? चलें जी, आपके लिए स्क्रीन पर कोई लफ्ज है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उसका एक हर्फ है और आप बताएंगे कि ये कौन सा लफ्ज है। आप हमसे पूछते रहिए, अलिफ से लेके या तक में से कुछ भी आप पूछेंगे और इसके लिए सेकंड्स भी जारी हैं। इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है। पांच सेकंड्स। इसमें नून आता है? नून भी आता है। सुभान अल्लाह, 2 बार सवाल किए, दोनों दुरुस्त। वेरी गुड, बड़े ज़हीन तलबा है माशाल्लाह। इसमें हा आता है? हा के हा हलवे वाला? हाँ जी, नहीं आता, गलती हो गई। टोटल ये 4 सवालात कर सकते हैं, 5वें में फिर इन्हें जवाब देना होता है। अब अगर जवाब देंगे तो 1 पॉइंट आता है। जी ता टेक्निकली क्या कहेंगे, आता है कि नहीं?
ता आता है कहेंगे, चलें, अगरचे वो गोल ता है और ये ता आपको बहुत नजदीक भी ले जा सकता है। इस ता से कई इशारे आपको मिलते हैं। आइन आता है? आइन? हाँ जी। नहीं। चले जी, 2 रॉन्ग हो चुके। 5 सेकंड्स, पूछिए। इसमें रा आता है? रा आता है, जी हाँ। इसमें या आता है? या भी आता है। दाद आता है? हाँ? दाद? दाद तो उर्दू में है ही नहीं ना, ज़ाद है। जीम आता है? बिल्कुल आता है और आपने पूरा लफ्ज रियाजुल जन्ना बना दिया है। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, रियाजुल जन्ना। माशाअल्लाह, 3 नंबर आपको मिलेंगे, 3 पॉइंट्स। 5 में से 3 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए हैं। रियाजुल जन्ना पे कोई शेर भी है हसनैन भाई? हसनैन भाई बैठे ना। रियाजुल जन्ना, इस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह, रौज़तुल जन्ना या रियाजुल जन्ना। माशाअल्लाह। चले जी, खाने वाल की टीम, आपके लिए है अब एक लफ्ज या कुछ 1-2 लफ्ज, लेकिन एक हर्फ अभी दिखाया जाएगा। ज़ाद, सवाल कीजिए जी। अलिफ से लेके या तक में से आप पूछ सकते हैं। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ है, जी हाँ। 5 सेकंड्स। क्या इसमें या है? या भी है, लिखने में तो है, बोलने में भी है। अच्छा, 2 या है, एक के ऊपर खड़ा जबर है, एक पर नहीं है, तो ये भी एक इशारा है। दो सेकंड, जल्दी। बा है इसमें? बा नहीं है, बे नहीं है। उर्दू में बे, अरबी में बा। फा है इसमें? जी, फा है, फे भी है, ता है, ते भी है। चले जी, वाव है इसमें? वाव भी है। माशाअल्लाह, तकरीबन पहुंच गए हैं। रा जाए तो जवाब दे दे। रा रे है भी है। अब रिस्क नहीं ले रहे, मगर डर लग रहा है कहीं गलत जवाब। वाव और है, एक और वाव भी है। फतावा रज़विया। फतावा रज़विया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्होंने एक गलती की तो इन्हें कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट इन्हें मिलेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। फतावा रज़विया की क्या शान है। फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा। मेरे रज़ा का फैज़ान है फतावा रज़विया। 33 वॉल्यूम्स, 33 जिल्दों पर मुश्तमिल कमाल का ये शाहकार है। चलें जी, एक और सवाल छांगा मांगा की टीम से। आपको फिर एक लफ्ज बताना है, कौन सा है, लेकिन एक हर्फ हम दिखाएंगे आपको। है जी। इसमें वाव आता है? नहीं। अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है। मीम आता है? जी हाँ, 2 मीम। सीन आता है? जी, आप पहुंच गए हैं लगता है। नून आता है? जी, सही जवाब। इमाम हसन। इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। राकिबे दोशे शहनशाहे उमम, या हसन इब्ने अली कर दो करम। सुभान अल्लाह। 4 नंबर आप हासिल करेंगे, एक गलती आपसे हुई थी। और चलेंगे आखिरी इस सेगमेंट का जो लफ्ज है। टीम खानेवाल, आप बताइए। फे हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सेकेंड्स। अलिफ आता है इसमें? अलिफ भी अलिफ आता है। जी,
मीम आता है इसमें? मीम आता है। आठ सेकंड। या आता है इसमें? या नहीं आता। आप बहुत आखिर में जाकर सवाल कर रहे हैं, एक आध सेकंड रह जाता है, जल्दी किया करें। सेकंड्स गुजर जाने के बाद फिर आपका सवाल वैलिड नहीं रहेगा। 5 सेकंड, जल्दी कीजिए। रा आता है इसमें? रॉ आता है, रे आता है। काफी करीब हैं मुझे लगता है, अब कोशिश करें तो पहुंच जाएंगे। या जल्दी कीजिए। ता आता है? ता नहीं आता, एक और गलती हो गई। आइन आता है इसमें? आइन आता है। वाव आता है इसमें? वाव भी आता है। काफ आता है? बिल्कुल आता है। उमर फारूक। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु 2 बार गलती की, लेकिन फिर जवाब आपका दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स माशाअल्लाह। यूं स्कोर बोर्ड पर अब भी खानेवाल थोड़ा सा आगे है और मुकाबला टाइट जारी है। 4 सेगमेंट्स मुकम्मल हो चुके माशाअल्लाह। अल्फाज बनाने होते हैं हुरूफ के जरिए और अपनी जहानत का मुजाहरा यहाँ टीम्स करती हैं माशाअल्लाह। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने दोनों टीमों ने चारों बार कोई गलती बहरहाल नहीं की कि नंबर ही ना लिए हों, लेकिन एक आध गलती तो हो जाती है, कोई बात नहीं। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे और देखते हैं अब तक कितने टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं। मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में दोनों टीमों ने बराबर पॉइंट लिए हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। 7-7 पॉइंट हासिल किए माशाअल्लाह। और यूं खानेवाल की टीम है 29 और छांगा मांगा की टीम है 27 पर माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। अशफाक भाई, हमारे पर अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना एक हदीस पाक हम देते हैं और बच्चे और बड़े उसकी वीडियो बाकायदा बना कर में भेजते हैं। तो आइए देखते हैं कल जो हदीस हमने दी थी उसकी वीडियोस देखते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। शख्स तलबे इल्म में रहता है तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क का ज़ामिन है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सिलसिला बच्चों को हदीस पाक याद कराने के हवाले से। आज की हदीस शरीफ ये मैं बयान करता हूँ, आप गौर से सुने और हो सके तो याद करें और बच्चों की वीडियोस भी हो सके तो बनाकर भेजिए। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर नबी का कोई साथी होता है, मेरे साथी यानी जन्नत में उस्मान रदी अल्लाह अन्हु हैं, यानी जन्नत में साथी उस्मान रदी अल्लाह अन्हु हैं। मिरातुल मनाजी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 393 इसका रेफरेंस है माशाअल्लाह। इस हदीस पाक में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु की शान भी बताई जा रही है और बच्चों को याद करवाइए और वीडियो बनाकर आपने इस नंबर पर भेजनी है। आपके सामने नंबर चल रहा है +923082626000 पर आप हमें भेज सकते हैं। आइए नाजरीन, स्कोर बोर्ड एक बार फिर देख लीजिए। छांगा मांगा 25 और खानेवाल 29, 4 पॉइंट्स का फर्क है और ये गैप इन्हें खत्म करना होगा छांगा मांगा की टीम को अगर आगे बढ़ना है और अगले राउंड्स में पहुंचना है। अगला मरहला है सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई यहाँ आएंगे और इनको जिस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा हुआ दिख रहा है उनकी कुनियत मुबारक जो है वो लिखनी होती है और ये कुनियत ये रखना सुन्नत भी है और हमें भी रखने की सादत पानी चाहिए। तो आप माशाअल्लाह आ रहे हैं अली हुसैन भाई, बिलाल भाई, आपके पास कहाँ है मार्कर वगैरह? हाँ अच्छा, यहाँ से लगाएंगे। चलें जी, शुरू कीजिए। इनके पास कितना टाइम है?
آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے. چلیں جی آپ لگانا شروع کریں. محمد بلال. ٹوٹل 5 پوائنٹ حاصل کرنے کا یہ سیگمنٹ ہے اور ہر جواب کا 1 پوائنٹ ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے 45 سیکنڈز. ابھی تک کھانے والوں نے ایک بھی نہیں لگایا. ساٹھ سیکنڈز بہت کم ہوتے ہیں ویسے اتنا. ماشاءاللہ بہت جلدی لگا لیا چھانگا مانگا کی ٹیم نے. اچھا یہ ادھر کھانے والے ادھر. آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے بھائی. چھانگا مانگا علی بھائی 3 سیکنڈ ہیں. چلیں جی بس آ جائیے علی بھائی آپ اپنی جگہ پر تشریف لائیں. یہ گر جائے گا چھوڑیے نہیں گرا کیوں پریشان ہو. چلیں تشریف لائیں اپنی اپنی جگہ پر اور چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کھانے وال کی ٹیم نے جو چھانگا مانگا کی طرف بورڈ ہے اس پر یہ بنایا ہے اور حضرت سیدنا عمران بن حسین ان کی کنیت ابو نجید بالکل درست جواب. حضرت سیدنا صدی بن عجلان سدئی بن عجلان ان کی کنیت ہے ابو امامہ باہلی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن بسر ان کی کنیت ہے ابو بسر اور ابو صفوان. صحیح جواب. پھر حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ہے ابو سعید خدری. یہ بھی صحیح جواب. حضرت سیدنا اسلم یا ابراہیم اور ان کی کنیت ابو رافع. تو ماشاءاللہ کھانے وال کی ٹیم بلال بھائی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. 5 کے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ. ویسے ہی آگے تھے اور یہاں پر سارے جواب ہی نہیں ہیں. چھانگا مانگا کی ٹیم آپ لوگوں نے 3 جواب دینے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. حضرت سیدنا احبان بن سیفی غفاری اوہبان غفاری کیا بات ہے. ان کی کنیت ہے ابو مسلم. صحیح جواب. حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ ان کی کنیت ابو نجیح. صحیح جواب. حضرت سیدنا خالد بن زید رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ہے حضرت ابو ایوب انصاری. تو یہ ہمیں نالج بھی مل رہی ہے یہاں سے کہ بڑے مشہور صحابی جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہوتے کنیت ہی ہم زندگی بھر سن رہے ہوتے ہیں ان کے نام ہمیں یہاں سیکھنے کو مل رہے ہیں. آپ نے بھی 5 میں سے 3 جو جواب دیے وہ تینوں جواب درست ہیں اور آپ کو ملیں گے 3 پوائنٹس. آپ نے پائے ہیں ماشاءاللہ 5 پوائنٹس اور یوں اسکور کارڈ پھر آپ کے سامنے تھوڑا سا گیپ اور بڑھ گیا ہے. 28 پوائنٹس ہیں چھانگا مانگا اور کھانے وال کے 34. یعنی جو 4 پوائنٹ کا گیپ تھا وہ اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. آپ جو ہے مزید اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اور 6 پوائنٹس کے گیپ کو کیسے ختم کرنا ہے آپ اس پر ذرا سوچ بچار کریں. ہم 1-2 کال لے لیتے ہیں. ذیشان علی اتاری ہے اور میں لیا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیزن 17 اپنی منزل کو رواں دعا ہے. اللہ پاک دعوت اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور میں اپنی ٹیم کھانے وال کو سپورٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ویری گڈ. بہت شکریہ. اگلی کال. میں دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اسپاق بھائی کی آمد مرحبا. میرا نام محمد شعیب رضا. ماشاءاللہ. ایک کال اور دے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذہنی آسمائی سیزن 17 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس بار بابا شکر دین کا بھی کوئی سیگمنٹ رکھا ہے, ان کے بھی کوئی مدنی پھول رکھے ہیں یا نہیں, اس بارے میں کچھ مدنی پھول شاید فرمائیے گا. ابھی تو کئی ایپیسوڈز باقی ہیں اور آگے کئی مقابلے ہیں انشاءاللہ. آپ نے جو فرمایا یہ سیگمنٹس بھی پائپ لائن میں ہے, اللہ نے چاہا تو ضرور آئے گا. اسکور کارڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے ناظرین. 5 سیگمنٹس ہو چکے ہیں, 2 باقی ہیں اور کھانے وال اور چھانگا مانگا کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ جاری ہے. چھانگا مانگا کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا ہے کھانے وال نے. 28 پوائنٹس اور 34. کھانے وال 6 پوائنٹس آگے ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس میں مقدس مقام پہچاننا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ دونوں ٹیموں سے باری باری سوال کیے جائیں گے اور 2 سوال ہوں گے.
दो सवाल। तो पहले हमारे यूसुफ शाह साहब कुछ मकामात के नाम जो है वो पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, फिर आप टीमों से सवाल होंगे। आपने अपनी मेमोरी को शार्प करके चलना है। मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक सैयदा फातिमा हसन रदी अल्लाह तआला अन्हा, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, मज़ार मुबारक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौला इदरीस रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा, मज़ार हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह, मज़ार मुबारक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह। चलें जी, माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे मज़ारात की हाज़िरियाँ मदनी चैनल के ज़रिए हमारी हुई। अब आपको मौका दिया जाएगा कि आप कुछ टाइल्स खुलवा कर जो है वो मज़ार के करीब पहुँचें, जो भी मकाम है उस तक हमें पहुँचाएँ और बताएंगे। जितना जल्दी उतने ज़्यादा पॉइंट्स आप पाएंगे। छांगा मांगा की टीम को मौका देते हैं जी, कौन सी टाइल हटानी है 1 से लेके 16 तक, आप जल्दी से बताइए जी। 11 नंबर खोलिए। 11th टाइल हटा दीजिए। हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमा। पहले पे ही जवाब दे रहे हैं, देख लें, रिस्क ना लें कहीं सारे नंबर जाया ना हो जाए। क्या लगता है आप हाजरीन को? जवाब दुरुस्त लग रहा है? किस किस को सही लग रहा है? अरे भाई सबको सही लग रहा है, क्या बात है। हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह का इन्होंने कहा और जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। 5 के 5 पॉइंट्स छांगा मांगा की टीम ने हासिल कर लिए। वेरी गुड। अब बारी है खानेवाल, आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है। कौन सी टाइल खुलवाएंगे? 11 नंबर। चलें जी, इनको भी 11th टाइल हटा के दिखाइए। हाँ जी, क्या लग रहा है, कौन सी बारगाह है? छह नंबर खोल दें। 6 टाइल खोलें। अब जितनी टाइल्स खुलेंगी एक एक पॉइंट कम होता जाएगा। मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। मज़ार मुबारक हजरत मैमूना। आपने कहा ताहिर भाई को क्या लग रहा है? सही लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह। चलें जी, इन्होंने कहा हजरत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा का ये दरबार है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक टाइल इन्होंने एक्स्ट्रा खुलवाई थी तो पॉइंट 1 कम मिलेगा ना, 4 पॉइंट मिलेंगे जी, 4 पॉइंट माशाल्लाह। यानी पहली बारी में 1 पॉइंट छंगा मांगा की टीम ने ज्यादा लिया है। वेरी गुड। चलें जी, दोबारा आपकी तरफ आते हैं, फिर इसी तरह पहले वाली कोशिश करके दिखाइएगा। दिखाएं टाइल्स, बताइए कौन सी खोले? 11 नंबर खोलिए। फिर 11वीं वाले हैं माशाल्लाह। हाँ, अब बताएंगे कौन सा दरबार है ये, कौन सा मकाम है ये, या एक और टाइल खोलें? आपके पास 5 सेकंड है। 6 नंबर खोलिए। 6 नंबर खोल दीजिए। पहुंच गए। सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी अलैहिर्रहमा। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी। क्या लगता है हाजरीन को? सही जवाब दे रहे हैं, माशाल्लाह। दुरुस्त है भाई, सबने कह दिया। दिखाइए, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त हो गया है। वेरी गुड। 4 पॉइंट्स हासिल किए इस बार, 1 टाइल एक्स्ट्रा खुलवाई थी। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का खाने वाले की टीम से। 11 नंबर। 11 नंबर खोलेंगे। सबने टेक्निक सीख लिए। 11वीं से चलो भाई। शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। इतनी जल्दी? शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह। शाह साहब सही कह रहे हैं, माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोराकन
हस्ती मराकश के बुजुर्ग शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की हाजिरी हुई और 5 के 5 पॉइंट खानेवाल की टीम ने इस बार हासिल किए। तो यूं इस सेगमेंट में लगता है दोनों टीमों ने कोई पॉइंट जो है वो आगे पीछे नहीं होने दिया। दोनों के 9-9 पॉइंट्स हुए और 37 और 43 दोबारा वहीं आकर 6 पॉइंट के गैप पर हम रुक चुके हैं। एक ऑडियंस के लिए भी हो जाए। हाँ जी, हाजरीन में से कोई जवाब दे। शफीक भाई आ जाए मैदान में। हमारे पास तैयार है ज़ियारत। चलें एक दिखाइए दरबार। चलें कोई वैसे सवाल कर लीजिए इनसे, ये रहने दें। अच्छा जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे का नाम आप में से कोई बताएगा? किसी भी बेटे का नाम बता। आसान सवाल है, जल्दी जल्दी उनको तोहफा भी दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरसल रजा डिफेंस कराची से हाजिर हुआ। वेरी गुड, मरहबा। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम। हजरत हाबील रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह, वेरी गुड। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतर तोहफे में पेश की जाएगी तस्बीह मदीना और इमामा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो आगे बैठे इनसे ताहिर भाई एक सवाल कर ले जल्दी से, एक प्यारा सा और ऐसा सवाल कि कोई जवाब भी दे सकें। माशाअल्लाह। सवाल अब शाह साहब का माइक बंद है। ताहिर भाई सवाल। ये छोटे बच्चे भी आज हमारे साथ हैं। माशाअल्लाह। सवाल आसान सा कर लिया जाए। कर ले। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, 9:30 बजे हमें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाना है। जी ताहिर भाई। दावत इस्लामी के दीनी कामों की तादाद बता दे। दावत इस्लामी के दीनी काम कितने हैं? माशाअल्लाह, इस्लामी भाइयों के दीनी काम अच्छा जो हमें करने चाहिए, चाहे कोई किसी भी सतह पर हो। चलें जल्दी जल्दी, बच्चे भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। 12 दीनी काम। जी ताहिर भाई सही जवाब है। सुभान अल्लाह। 12 दीनी काम। दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको प्यारा सा गिफ्ट देते हैं और हम चलते हैं अगले और आखिरी मरहले की तरफ, आखिरी सेगमेंट, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम आज की विनर है। और ये बड़ा ही अहम सेगमेंट है, जोश भी रखना है, होश भी रखना है। आइए शुरू करते हैं। जोश के साथ मगर होश से। अब ये कैसे हो कि दोनों चीजें एक साथ चलें, इसी का तो इम्तिहान है। तो पहला एक सवाल होगा और एक शेर होगा। जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। अब किसी की बारी नहीं है तो आप में से जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। बैल चेक कर लीजिए। बैल, सबकी बैल ठीक है? आपकी बैल सही है? माशाअल्लाह, बड़े डिसिप्लिन्ड है भाई, बारी बारी बजाई, किसी ने भी अलग से नहीं बजाई। वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है। सवाल मैं करूंगा, जब बैल बज जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर सवाल भी आपने बताना है और फिर जवाब भी आप देंगे। और अगर पूरा सवाल सुनते हैं तो फिर सिर्फ जवाब देंगे। हर बार आपको 2 पॉइंट्स, अगर गलत जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स माइनस होंगे और सही जवाब पे इनको 2 पॉइंट्स मिला करेंगे। टोटल 10 सवालात हैं, 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। हजरत नूह जी खानेवाल, क्या सवाल है आप ही बताइए। अब सवाल ही गलत हुआ तो जवाब की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आपके पास 25 में से 15 सेकंड बाकी हैं, कहीं आपका जोश पीछे ना ले जाए। खानेवाल वाले वैसे रिस्क ले सकते हैं, 6 पॉइंट हैं एक्स्ट्रा इनके पास। 4 सेकंड जल्दी कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और कौन से नबी मौजूद थे? जी जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब दिया। जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक जसद शरीफ था, यानी जिस्म पाक, जो कि बाद में फिर उसकी तदफीन हुई। यानी आप बज़ाहिर हयात नहीं थे उस वक्त, इंतकाल फरमा चुके थे और आपकी मुबारक जिस्म पाक था। और यकीनन अंबिया अलैहिमुस्सलाम वादा मौत के बाद भी एक तरह की जिंदगी ही होती है उनकी, और बाद वफात भी उनके लिए जिंदगी वाले मामलात अल्लाह पाक अता फरमाता है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, और इनके जिस्म न सड़ते हैं न गलते हैं, न मिट्टी उन्हें खाती है, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें रोजी अता फरमाता है।
चले अब शेर है, जो बैल बजा देगा मैं वहीं रुक जाऊंगा और फिर शेर आपको पूरा करना होगा। शेर है, हुई जो मुझ आगे, मुझसे आगे आप पढ़ेंगे। मुजरिम भी मैंने पूरा नहीं कहा, आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है मुझ ही हो। हुई जो मुझ, चलें जी 4 सेकंड पढ़िए। हुए जो मुजरिम को बाज याबी तो खौफ एसियां से दज ये होगी। खमीद असर आंख आबदीदा आंखें लरस्ता हिंदी गुलाम होगा। ठहर के, खमीद असर आबदीदा आंखें लरस्ता हिंदी गुलाम होगा। माशाअल्लाह बहुत मुश्किल शेर, लेकिन इन्होंने जवाब सही दे दिया है। वाह भाई, छांगा मांगा की टीम 2 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए, वेरी गुड। अगला फिर एक सवाल है बच्चों की। जी छांगा मांगा की टीम, आपने सवाल भी बताना है, जवाब भी बताना है। क्या है सवाल? बच्चों की क्या? बच्चों की बैत किस उम्र में करवानी चाहिए? बच्चों की उम्र, बच्चों को बैत किस उम्र में करवानी चाहिए? देख लें। जवाब ये है, थोड़ा सा सवाल मजीद सही करना होगा। आप वैसे तकरीबन ठीक है। बच्चों को किस उम्र में बैत करवा सकते हैं? चलें, बच्चों की किस उम्र में बैत हो सकती है? जवाब दीजिए। 1 दिन का भी बच्चा हो तो उसको बैत करवाया जा सकता है। वाह भाई, 1 दिन का बच्चा हो तो भी उसकी बैत उसके सरपरस्त की इजाजत से हो सकती है। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। वेरी गुड, 2 पॉइंट और हासिल करके नजदीक आ गए। खानेवाल की टीम को अब पसीना आ रहा होगा सर्दी में भी कि 6 पॉइंट नजदीक थे और 6 पॉइंट आगे थे, अब सिर्फ 2 पॉइंट शायद या 4 पॉइंट रह गए। छांगा मांगा की टीम को 2 पॉइंट और मिल चुके हैं। अब एक और शेर पढ़ता हूं, देखें कौन पूरा करता है। शेर है, रूए, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने एक लफ्ज पढ़ा है, रूए। खानेवाल, इतनी जल्दी इतना जोश भी नहीं चाहिए। रूए सबी एक सहर जुल्फे दुता है शाम दो, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। आराम आराम से, वैसे इतना मुश्किल शेर है। रूए सबी एक सहर जुल्फे दुता है शाम दो, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। वाह, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। रुखसारे पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है और जवाब बहुत अच्छा और बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जवाब देंगे। तैयारी अच्छी है। 3 सवाल हो चुके, चौथा सवाल। 4 सवाल हो चुके। नहीं, सवाल नहीं था ये। बैल किसने बजाई? चले, ये सवाल नहीं था, सवाल अब कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? इमाम कुर्तुबी, छांगा मांगा, इमाम कुर्तुबी, सवाल बताइए आप आगे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला ने गुनाह कबीरा की तादाद कितनी बताइए? जी 700। जवाब सही दे दिया है। वाह वाह वाह, 2 बार आपने एवं ही बजाई और असली वाली इन्होंने बजा दी और सही जवाब दे दिया। माशाल्लाह, 2 पॉइंट और मिल गए छांगा मांगा की टीम। अगला एक और शेर है, देखिए ये कौन पूरा करता है। क्या खूब, सुनते नहीं है लगता है, ऐसे ही बजा देते हैं कि अल्लाह मालिक है। जी खानेवाल, क्या खूब हो जो मुझसे आकर सबा ये कह दे, पहुंचा दिया है मैंने शाह को सलाम तेरा। वाह वाह वाह, क्या खूब हो जो मुझसे आकर सबा ये कह दे, सबा यानी हवा, पहुंचा दिया है मैंने शाह को सलाम तेरा। जवाब फिर सही दे दिया है। अशार में तो ये माहिर है माशाअल्लाह। खानेवाल ने फिर 2 पॉइंट ले लिए और अब इतना गैप हो गया है, आगे के सारे सवाल भी अगर करें तो मुझे लगता है कि ये टीम पता नहीं जीत सकेगी कि नहीं। कितने सवाल रह गए? 5 हो गए और मेरे पास अब 2 सवाल और है। टोटल सवाल कितने हैं? 7 या 6? मेरे पास 5 और 3 8 सवाल बन रहे हैं। अच्छा जी, वो मैंने खुद ही करने। चलें जी, छठा सवाल कर रहा हूं, देखिए कौन बैल बजाता है। अभी नहीं, अगर छांगा मांगा
اب آپ بتائیے سوال کیا تھا, آپ نے بیل کیوں بجائی؟ اگر, اس سے پہلے بھی آپ نے اگر والا جواب دے تو دیا تھا, 1 دن کا بچہ 2 نمبر, ورنہ آپ کے چلے جائیں گے یہ جواب اگر آپ نہ دے سکے. اگر چلیں کچھ تو تکا مارے, ٹائم ختم. آپ کو پتا ہے کیا سوال تھا یہ طیب بھائی؟ چلیں میں بتا دیتا ہوں. اگر ریا کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے نماز روزہ رکھا تو فرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نماز روزہ ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ثواب وغیرہ نہیں ملے گا. دکھاوے کے لیے یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اب ہو چکے ہیں 7 سوال. 8واں سوال میں کرنے جا رہا ہوں, سجدے. چلیں, ہو سکتا ہے یہ آخری ہی سوال ہو, آگے ہمیں ہمنگ کی طرف نہ جانا پڑے. سوال میں صرف لفظ آیا سجدے, آگے سوال بھی آپ بتائیں. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں, سجدہ سہو, سجدہ شکر, سجدہ تلاوت اور سجدہ نماز. سجدہ نماز, سجدہ تلاوت, سجدہ سہو اور سجدہ شکر. آپ کا جواب صحیح ہو چکا ہے. اور 51-41. اب اگر دونوں سوال کے صحیح جواب یہ دے بھی دیں تو اس کی حاجت نہیں ہے, وقت بھی کم ہے, اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے پیارے پیارے مدنی پھول لینے کا بھی وقت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت کرم فرمائیں گے. تو ہم اگلے 2 سوال کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آج کا مقابلہ خانے وال جیت چکے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ویری گڈ. آپ حضرات نے بڑی محنت کی, بہت کوشش کی. چھانگا منگا کی ٹیم بھی کم نہیں تھی, لیکن بہرحال خانے وال کی ٹیم نے بہت زیادہ ہی زور لگا دیا تھا, اور 10 پوائنٹ کا گیپ دے کر جیتے ہیں. بڑی بات ہے, انہوں نے ان کو چانس ہی نہیں لینے دیا. اور ماشاءاللہ خانے وال آپ کو مبارک ہو, آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کے لیے بھی بیسٹ آف لک. چھانگا منگا کی ٹیم, آپ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے, آپ کے لیے بھی موقع دیا جائے گا. جی شفیق بھائی آج کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, کل سوال جو آپ سے جو سلسلے کے شروع میں سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غوث پاک کے حالات میں یہ موجود تھا. ہمارے پاس جو نام ہے ابو شہیر سید پیر بخش اتاری بنت توصیف ابو حرم محمد عمر حیات اتاری بنت محمد انور اتاریہ محمد فیضان اتاری محمد زہیب رضا میاں والی ام رضا حامد رضا نواب شاہ, اور بھی ہمارے پاس کئی نام ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. اور جن کا نام نکلا ہے ان کو گفٹ دیے جا رہے ہیں, قبول فرما لیں شاہ صاحب. جی شفیق بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو نام نکلا ہے گلگت بلتستان سے ابو شہیر سید پیر بخش اتاری. آپ ہم سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو گلگت بلتستان میں تحفہ پہنچایا جائے گا. ابو شہیر پیر بخش. ویری گڈ, مبارک ہو بھائی, آپ کے لیے گفٹ ہے. اب انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کن 2 ٹیموں کا مقابلہ ہوگا. اس سے پہلے آج کا اسکور بورڈ دیکھ لیجئے. آج کن دونوں ٹیموں نے کس طرح مقابلہ کیا. 7 سیگمنٹ سے گزر کر ان 2 ٹیموں نے ماشاءاللہ علم نور ہے, عشق کے بول, دعوت اسلامی کہا نہیں, مکمل کیجئے. صحابہ ہمارے بڑی شان والے, یہ مقدس مقام کون سا ہے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. ٹوٹل 7 سیگمنٹ سے گزر کر خانے وال نے 51 اور چھانگا منگا کی ٹیم نے 41 پوائنٹس حاصل کیے. ویری گڈ, سب ٹیموں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی. جی خانے وال نے 51 پوائنٹس لے کر آج جیت اپنے نام کی ہے. چھانگا مانگا کے 41 پوائنٹس رہے. دیکھتے ہیں کل کون سی 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوں گی. سوچ کا مقابلہ اور جواب کا امتحان, ہر لمحہ اہم, ہر سوال کا درست جواب جیت کے قریب, اور غلطی جیت سے دوری کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو پھر دیکھیے انہی مناظر کے ساتھ مدنی چینل کا مقبول عام کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 17 انشاءاللہ 26 نومبر 2025 بروز بدھ رات 8 بجے, جس میں ہوں گی فیصل آباد اور سرلے کلاں کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. ماشاءاللہ آج کی بیسٹ پرفارمنس پر ہمارے خانے وال کی ٹیم کے محمد بلال اتاری کو دیا جا رہا ہے بیسٹ پرفارمر کا ایوارڈ. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. ویری گڈ. آج کوئز اپلیکیشن پر جو سوال ہوا تھا شروع میں, اس کا جواب سماعت فرمائیں, اور درست جواب دینے والوں کے نام بھی اسکرین پر آئیں گے. سوال تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت, آپشن تھے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ, بی بی سارہ, بی بی زینب, بی بی مریم رضی اللہ عنہن, اور درست جواب ہے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا. اور ان میں سے لکی ڈرا یہ کس کے نام پر نکل رہا ہے؟
माशाल्लाह ये 5 आईडीज हैं, ये नोट कर लें अपने। अगर आपका इनमें से आईडी आ रहा है तो स्क्रीन एक तस्वीर खींच लें और जो है हमारे इस्लामी भाइयों से राब्ता करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुबारक हो इन 5 आईडीज वालों को, आपको इंशाल्लाह हम प्यारा सा तोहफा भिजवाने की कोशिश करेंगे। अब एक सवाल जो आखिर में किया जाता है जिसका जवाब आप कल देंगे। सवाल है, अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? तो इसका जो जवाब है ये आपने कल तक देना है। कल प्रोग्राम के शुरू में इसका इंशाअल्लाह उल करीम सिलसिला होगा। हाजरीन में से आज किसके लिए तोहफा पेश किया जा रहा है? बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए टोकन नंबर है 4930। किसके पास है? 4930। 4930 वाले मौजूद हैं, वरना हम दूसरा निकाल लें। माशाअल्लाह, अच्छा खुसूसी इस्लामी भाई। बच्चों में से कुरानदाजी है, बच्चे, इनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। 5805 कौन है? 5805 है कोई? 5805 है? आ जाए ले लें। माशाअल्लाह, गिफ्ट ले आएंगे। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मरहबा, आपको मुबारक हो। वेरी गुड, कबूल फरमाइए आपके लिए ये तोहफा। और आपका निकला है, माशाअल्लाह, मुबारक हो। वेरी गुड, अल्लाह मीठा मदीना दिखाए। आइए नाजरीन, खड़े होकर 2 शेर सलात व सलाम के पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का, जलवाहे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी